मिनिस्टर इंडिया में आपका स्वागत है। इस वक्त मौजूद हैं गोलपुर के धरमपुर बाजार में और धरमपुर 1 नंबर ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज एक ज्वाइनिंग सभा का आयोजन किया गया है और इस ज्वाइनिंग सभा को संबोधित कर रहे हैं यहाँ के विधायक और राज्य के कैबिनेट मिनिस्टर गुलाम रब्बानी साहब। तस्वीरें इस वक्त जहाँ पे कांग्रेस के काफी संख्या में जो है कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है। हम आपको तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये इलेक्शन আমাদের বাংলার ঐতিহ্য, আমাদের বাংলার সংস্কৃতি, বাংলার আমাদের কালচার কি করে আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখবে সেই ইলেকশনটা আগামী দিনে আসছে। শুধু এটাই না, আপনারা জানেন ভালো করে 2019-এ আমরা ভোট করেছিলাম। এখান থেকে আমরা ধরমপুর 1 থেকে 14টা পঞ্চায়েত মিলে আমরা 50,000 ভোট লিড দিয়েছিলাম। কত হাজার? 50,000। সলিম সাহেবকে ভোট দিয়েছিলেন, কিছু লোক ভোট দিয়েছিলেন শ্রীমতী দীপা দাস মুন্সিকে। দীপা দাস মুন্সি কত ভোট পেয়েছিল? 82 ভোট। এদিকে করে দিই, আমাদের প্রার্থীকে আমরা জিতাতে পারবো না। যার জন্য टेक्निकल वजह से আপনাদের কাছে আমার डिस्कनेक्ट हो गया था। रिक्वेस्ट, আমার अपील, আমার गुजारिश, আমার অনুরোধ राज्य के मंत्री गुलाम रब्बानी साहब একটা ভোট যদি এদিক যায়, দুইটা ভোটের আমাদের ঘাটতি হয়ে যাবে। 1 नंबर ग्राम पंचायत আমি কাউকে পঞ্চায়েত ইলেকশনে হারাতে এসেছিলাম কি? আসেনি। কাউকে জিতাতে এসেছিলাম? আসেনি। কাউকে টিকিট দিতে এসেছিলাম? আসেনি। আমি শুধু পঞ্চায়েত ইলেকশনে জেলা পরিষদের কয়টা সভা করেছিলাম। इलेक्शन में जीते हैं। জেলা পরিষদের কিছু লোককে আপনারা জয়েনিং है যদি আমাদের প্রার্থী ছিল তাকে ভোট দেন, কিন্তু তাও আমরা এখানে কিছু প্রার্থী আমরা জিতাতে পারিনি। तस्वीर में देख सकते हैं। কিন্তু আগামী দিনে যদি একটু গেলামেলা করি, আমরা আমাদের অস্তিত্বের ব্যাপার আছে, আমাদের লড়াই করে জীবিত থাকতে হবে। আপনারা জানেন না 11,36,000 পিএমওয়াই লিস্ট, ঘরের লিস্ট কেন্দ্রীয় সরকার চেয়েছিল আমাদের কাছে। ওরা কত টাকা দিবে? 100-র মধ্যে 60 টাকা দিবে, আমরা দেবো 40 টাকা। 11,36,000 লিস্ট আমরা পাঠালাম এখান থেকে। ইউপি কে 56 লক্ষ দিয়ে দিয়েছে, কিন্তু আমার টাকা এখন আমাদের টাকা দেয়নি। এমজি এনার্জির টাকা যারা প্রধান ছিল, নুরুল ইসলাম ছিল, কাশীনাথ ছিল, ওরা ভালো করে জানে। আজকে এজেন্সিরা কান্নাকাটি করছে, লোকগুলো কান্নাকাটি করছে। এমজি এনার্জির টাকা 3-4 বছর থেকে বন্ধ রেখেছে। আপনারা বলেন, একটা দোকানে যদি একটা মজদুর কাজ করে সকাল থেকে বিকাল, যদি টাকাটা না দেন আপনারা, আপনাকে বিরক্ত করবে না? ওর অভিশাপ লাগবে না? নিশ্চয়ই লাগবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার 3 বছর 4 বছর থেকে আমাদের এখানকার খেটে খাওয়া মানুষগুলো কাজ করে টাকা পায়নি। আমাদের অভিষেক ব্যানার্জি এসেছিল, নবজোয়ার করবে, নবজোয়ার করার সময় একটা ওয়াদা করেছিল যে আপনাদের টাকার জন্য আমরা দিল্লি থেকে লড়াই করব। দিল্লিতে গিয়ে আমরা এখান থেকে 30,000 মানুষ নিয়ে গেলাম দিল্লি। 42টা মিনিস্টার, সবকটা 220টা এমএলএ, এমপি, জেলা প্রেসিডেন্ট, অল লিডার্স, আমরা সবাইকে কোথায় ধর্ণাতে বসছিলাম? রাজঘাটে, গান্ধী স্ট্রিটে। কেন? ওই স্কিমটার নাম কি? মহাত্মা গান্ধী রুরাল গ্যারান্টি রোজগার যোজনা, এমজি এনার্জি। আমরা প্লে কার্ডগুলো শুধু লাগাইছিলাম, কিছু ছিল না আমাদের কাছে। না কোনো জিন্দাবাদ বলেছিলাম, না মোদি হাঁটাও বলেছিলাম। তার সত্ত্বেও কিন্তু 1 সেকেন্ড আমাদেরকে ওরা বসতে দেয়নি। লাঠের জোরে, পুলিশের জোরে মেরে সবাইকে তাড়িয়ে দিল। একটা মন্ত্রীর উপর লাঠিচার্জ করবে, একটা এমপির উপর লাঠিচার্জ কোনোদিনও দেখেছিলেন ভারতে? কোনোদিনও দেখেননি আপনারা? ওখান থেকে আমরা কারো জুতা ছাড় পড়ে গেছিল, কারো আবার গাড়ি হারিয়ে গেছিল। আপনার টিভিতে নিশ্চয় দেখেছেন। অভিষেক ব্যানার্জিকে 1 লাঠি মেরে দিল। আমার বক্তব্য, আমরা অভিষেক ব্যানার্জিকে আমরা
গাড়িতে পুশ করে তারপরে ওকে আমরা সরাইছি। আর সঙ্গে সঙ্গে ওখান থেকে আমরা চলে গেলাম কোথায়? যন্তর মন্তর। ওখানে ধর্নাতে বসলাম। কাদের জন্য? আপনাদের জন্য, আপনাদের টাকার জন্য। 15,000 কোটি টাকা আমরা পাইনি ওখানে। 1,15,000 কোটি টাকা আটকে রেখেছে বিআরজিএফ, স্পেশাল বিআরজিএফ সব কোটালিয়ে। যখন লেফট ফ্রন্ট ছিল এখানে, কত বাজেট ছিল? 85,000 কোটি টাকা 2011 আগে। আর আজকে বাজেট কত? আজকে বাজেট আমাদের কত? 3 লক্ষ কোটি টাকা। আর 3 লক্ষ কোটি টাকার মধ্যে যদি 1.5 লক্ষ কোটি টাকা না দিয়ে থাকে, তাহলে বন্ধুরা আপনারা বলেন যে আমরা কি করে কাজটা করবো গভর্নমেন্টের? তাও সত্ত্বেও আমরা ধর্নাতে বসতাম। বসার পর আমরা ডেপুটেশন দিলাম মন্ত্রীর কাছে, যেতে দিবে না। 10টা পুলিশ অফিসার, আইপিএস অফিসার 4টা মন্ত্রীকে ঘেরাও করে রাখলো, বললো कि ना আমরা যেতে দেবো না স্যার। তাও কিন্তু আমরা ভয় পাইনি। আপনাদের টাকার জন্য আমরা বললাম, अरे भाई 10 ऑफिसर क्यों हो, 3,500 फोर्स क्यों दो 400 आदमी के लिए? ये आदमी को हटा दो, ये फोर्स को हटा दो, एक कांस्टेबल लेके आओ, सिर्फ हम लोग को लेके चले जाओ, गाड़ी में बैठा दो ना। और क्या कह रहा था कि सर ऊपर से ऑर्डर है आप लोग का पैर हाथ तोड़ने का लाठी से। आप बता सकते हैं इस तरह का सरकार होता है? आज यहाँ मोदी जी आते हैं, अमित शाह आते हैं, राजनाथ आते हैं और ईडी सीबीआई घुसता है। कभी हमारे पुलिस, कभी हम लोग कोई अत्याचार नहीं किए। फौज केस बना के जो है ईडी और सीबीआई घुस जाता है, तब भी हम लोग रजिस्टर उस दिन मार खाया है कुछ ईडी सीबीआई, वो अपने गलती की वजह से मार खाया है। उसके बाद अभिषेक बनर्जी को अरेस्ट करके लेकर चले गया मुखर्जी नगर थाना। वो हम लोग पहुंचने के बाद आ रहे हैं तो कुछ पुलिस ऑफिसर जो बोल रहा था कि सर आपको मारने के लिए हम लोग को भेजा गया है, तो हमने बताया करे भाई आज इनका चलती है पावर, तो आज इनके पास है, कल हमारे पास आएगा, परसों इसके पास आएगा। जमीन, पैसा और पावर किसी का बाप का जागीर नहीं होता है। आज आपके पास है, कल किसी और के पास होगा, परसों किसी और के पास होगा। लेकिन जो उछल कूद कर रहे हो ये कल महंगा पड़ेगा। जब हम लोग पावर में आ जाएंगे तब जो है फिर देखना तुम। तो हम तो पावर में है बंगाल में, किसी बीजेपी पर अत्याचार की है क्या? किसी को सीआईडी भेज के परेशान की है क्या? किसी को पुलिस भेज के परेशान की है क्या? नहीं। हमारा कहने के सब एक है, आइन सबके लिए है। तब मैंने एक साहब बोला कि वो सर थोड़ा सा सॉफ्ट लगा, तो मैंने कहा कि यार इसी मौके पे एक मैं शेर सुना दूं तुमको कि सर सुनाइए। एक आईपीएस ऑफिसर कह रहा है सुनाइए सर। क्या शेर है सर? तो वो शेर आप लोग सुनना चाहते हैं क्या? अगर सुनना चाहते बस सुनाओ। फिर शेर क्या था? अभी जिन पर लोग दिल्ली में फूलों की बारिश करते हैं, अभी जिन पर लोग दिल्ली में फूलों की बारिश करते हैं, कल उसी सर से हर हाथ का पत्थर भी गुजरेगा। ऐ मौत का सौदागर, तुम अपनी जीत पे अंगारे, जीत पे तरह के अंगारे ना बरसाओ, कल तो हमारे दीदी का फतह का लश्कर भी गुजरेगा। तो वो पुलिस ऑफिसर हमको कह रहे हैं कि सर आप तो बड़े अच्छा शेर सुना दिए सर। ये मौत का सौदागर सर मौत का समंदर बनाना चाह रहा है सर। आपने गोधरा देखा नहीं, आपने एनआरसी सीए देखा नहीं, आपने डिमोनेटाइजेशन देखा नहीं, आपने कृषक आइन देखा नहीं, आपने मणिपुर देखा नहीं, कहाँ छोड़ा है सर? मौत का सौदागर मौत का समंदर बनाते रहा है सर। इसलिए सर आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग लड़ाई कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। तो हक का सबको साथ देता है दोस्तों। यही नहीं, आज ये सामने इलेक्शन है, 1-2 महीना 1 महीना रह गया है सिर्फ। हम एक बात कहने के लिए आए हैं, रब्बानी को अगर कहीं गलती किया हो रब्बानी या मोनी, हो सके अल्लाह के वास्ते भगवान के वास्ते माफ कर दीजिएगा। अगर माफ नहीं कर पाए हम खुले अल्फाज में बोल के जाते हैं, अब हमको हरा दीजिएगा
हमारे घर वाले थोड़े दिन रो करके जो है खामोश हो जाएगा, लेकिन पार्लियामेंट इलेक्शन में एक भी वोट इधर उधर दीजिएगा तो पूरे जिंदगी भर जब तक कयामत ना हो जाए तब तक जो है आप लोग को जो है रोते रहना पड़ेगा। क्योंकि हम कहाँ है, इधर नेशनल बॉर्डर बिहार, इधर कहाँ है इंटरनेशनल बॉर्डर, दो बॉर्डर के बीच में है। और दो बॉर्डर के जहाँ बीच में है, एक मर्तबा एक ऑर्डर आया था 27 किलोमीटर तक कोई भी गरु छागल का बाजार नहीं लगेगा। कल ये लोग अगर ये आइन पास कर ले कि 27 किलोमीटर तक कोई बस्ती नहीं रहेगा, तो कल आप कहाँ रहेंगे, हम कहाँ रहेंगे? यहाँ सिर्फ हिंदू रहता है क्या यहाँ मुस्लिम रहता है? सारे लोग रहते हैं। हिंदुस्तान की आजादी के लिए किसी का बाप जो है शहीद नहीं हुआ था। बाप अगर शहीद हुआ था किसी हिंदू भाई का, मुस्लिम भाई का, हमारा सिख भाई का, क्रिश्चियन भाई का, सारे बाप जो है हिंदुस्तान को आजाद कराया था। और जो लोग आज तख्त में बैठे हुए हैं वो तो उस वक्त जो है उनके पुरखों ने दलाली किया था अंग्रेजों का। 17 बार माफी लिया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, गोलेकर जी, सारे लोग तो माफी मांग रहा था। तो हमारा सवाल है, ये इलेक्शन वजूद की इलेक्शन है। ये इलेक्शन आज कल हम लोग कैबिनेट से निकलने के बाद कुछ मिनिस्टर लोग कह रहे थे क्या होगा, तो मैंने कहा एक ही बात कि अगर हम लोग बंगाल को नहीं बचा पाए तो किसी का जो है खैरियत नहीं रहेगा। जो बीजेपी कर रहे हैं उसका भी खैरियत नहीं रहेगा, क्योंकि जो लोग आरएसएस वाले हैं, आरएसएस यहाँ के लोग, यहाँ कोई नहीं करता है, लेकिन विक्टिम कौन होगा? यहाँ के लोग होगा। इसलिए हम लोगों को एक एक सीट पर निगरानी रखनी है, एक एक वोट पर निगरानी है। क्यों निगरानी रखनी है? हिंदुस्तान की आजादी को बचाने के लिए, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के राइट्स और ड्यूटीज को बचाने के लिए, हिंदुस्तानियों का यही सिर्फ नहीं, पार्लियामेंट को एम्पावर करने के लिए, हाईकोर्ट को बचाने के लिए, फेडरल स्ट्रक्चर को बचाने के लिए। ये सारी चीजें अगर बच के नहीं रहेगी दोस्तों, तो कल आप और हम क्या बचेंगे? कल जो है ये किंगशिप की तरफ लेके जा रहा है, डिक्टेटरशिप की तरफ लेके जा रहा है। इसलिए दोस्तों आज का दिन बहुत अहम दिन है। आज 1 महीने के बाद इलेक्शन होगा, आपका एक एक वोट, इसलिए एक वोट अगर इधर उधर कर दिए तो 100 साल आपको झेलना पड़ेगा। 100 साल बाद क्या होगा ना जाने, अल्लाह जानता है, भगवान जानता है। आज सबसे ज्यादा झेलेंगे कौन? एससी लोग, शेड्यूल कास्ट लोग, शेड्यूल ट्राइब लोग। आप लोग सारे लोग सिर्फ 10 सेकंड की कुर्बानी, मुनी बोल रहा था कितने सेकंड की कुर्बानी? सिर्फ 10 सेकंड। 10 सेकंड की कुर्बानी अगर हमें मिल जाए, दीदी बोली थी एक टूटा हुआ पैर को लेकर के 10 सेकंड की कुर्बानी दीजिए, मैं आपको राशन जो है घर में पहुंचा दूंगी, फ्री राशन। फ्री राशन मिल रहा है ना, नहीं मिल रहा है? 10 सेकंड की कुर्बानी दीजिए, किस बंद को मैं डबल कर दूंगी। डबल हुआ है ना, नहीं हुआ है? 10 सेकंड की कुर्बानी दीजिए, मैं लक्की का भंडार कर दूंगी। लक्की का भंडार मिल रहा है ना, नहीं मिल रहा है? 10 सेकंड की कुर्बानी दीजिए, मैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड कर दूंगी। एक साहब बोले थे, अरे भाई हमको प्रधानमंत्री नहीं तो उसको चौकीदार बना दो। हम लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया, 2 करोड़ सर्विस देने की बात थी, नहीं हुआ। आप 15 लाख आने की बात थी, आपके अकाउंट में आया है कि नहीं आया है? हाँ, ये चीज आया है क्या? जब मनमोहन सिंह जी गए 54 लाख करोड़ हिंदुस्तान पे कर्ज था। कितना? 54 लाख करोड़। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ 47 में, अंग्रेज लूट लाट के चले गया था यहाँ से सब लोग, सब चीजें हमारी जायदाद से लेकर पैसा तक सब लूट के लेके चले गए। कहा? इंग्लैंड। हिंदुस्तान आजाद हुआ, आपके पुरखों ने आजादी किया हिंदुस्तान को। और हिंदुस्तान आजाद जब हुआ था 47 में, 47 से लेकर 2014 तक हमारे ऊपर कर्ज था 54 लाख करोड़। और आज के डेट में कौन सा जुल्म हो गया है कि 54 लाख से जो है 200 लाख करोड़ पहुंच गया कर्ज? अंदाजा लगाइए। जहां 1.5 लाख करोड़ हम लोग का बंद करके रखा है, जहां 10,80,000 करोड़ रुपए मोदी जी का दोस्त लोग लेके भाग गया है, वहां ईडी नहीं जाता, वहां सीबीआई नहीं जाता है। और जाता कहा किसकी यहाँ है? रब्बानी की यहाँ, फिराद हकीम की यहाँ, आज सुजीत बसु के यहाँ, सुजीत बोस की यहाँ सीबीआई घुसा है। एक तापस हमारे एमएलए साहब है, उनके यहाँ घुसा है। सब मंत्री के यहाँ, एमएलए के यहाँ, एमपी के यहाँ सीबीआई घुस रहा है। कलकत्ता में कोई घर बाकी नहीं दिया सीबीआई ने। अब बताइए कौन सा देश में हम रह रहे हैं?
इसी देश की क्या इसी आजादी के लोग दुआ कर रहे थे? इसी आजादी के लिए हिंदुस्तान में लड़ाई हुई थी, आजादी के लिए आजादी पाए थे? नहीं दोस्तों, गलत हुक्म सही टाइम में आ गया है। इसको उखाड़ के फेंकने की जरूरत है। इसको अगर उखाड़ के फेंक दो, कल हमारी इज्जत बची रहेगी, हमारी जिंदगी बची रहेगी, हमारा इलाका बाकी रहेगा। और ज्यादा वक्त ना लेकर के आप लोग अपनी बात यही खत्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, महोदय में जिंदाबाद, अभी से में जिंदाबाद, हमारे ग्वालपुर जिंदाबाद, धर्मपुर में जिंदाबाद। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग थोड़ा 5 मिनट में हम लोग मीटिंग खत्म करेंगे। ज्वाइनिंग हम लोग बस यहाँ पर करा दें। हम लोग हमारे 9 जीपी मेंबर इंडिपेंडेंस से 3 पंचायत समिति, आप लोग सामने में आ जाइए। दोस्तों, मैं जो आज ज्वाइनिंग का प्रोग्राम है, मैं एक 9 मेंबर हैं, मैं उन 9 मेंबर का नाम लूंगा और आप लोग सामने आ जाए। रोजी बेगम, मंत्री साहब अपने हाथों से हमारे रोजी बेगम रबुल के प्रधान को फ्रेंड पहना रहे। अब उसके बाद मरियम, वाइफ ऑफ तजीबुर रहमान, वो सामने आए। मरियम वाइफ ऑफ तजीबुर रहमान, यानी हीरो भाई की वाइफ। जब रोजी बेगम गई वो हमारे पिंटू भाई की वाइफ थी। हाँ, मरियम। अब उसके बाद अनुराधा कुंडू यानी हमारे परवीन भाई का वाइफ। उसके बाद मोमिना वाइफ ऑफ सैफुद्दीन और महमूना वाइफ ऑफ सैफुद्दीन। नावेद अली इसके बाद जाएंगे। मोहम्मद अंजुम हैदर, फतेहुद्दीन राही, संजीदा खातून वाइफ ऑफ रफीकुल, मिराज आलम। ये हमारे 9 ग्राम पंचायत के मेंबर थे। अब इसके बाद पंचायत समिति, तनवीर आलम, महमूद आलम और सबीरा खातून, ये तीनों आए। एक एक के हमारे मंत्री साहब अपने हाथों से। और इसके बाद वहां से झंडा उतार ले, जबर भाई वहां से बड़ा वाला झंडा ले। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आज हमारे धर्मपुर हमारे ग्वालपोखर में 14 अंचल हैं। 14 अंचल में देखिएगा, हर अंचल में टीएमसी के साथ कहीं कांग्रेस है, कहीं सीपीएम है, कहीं बीजेपी है। एक वाहिद ऐसा अंचल है धर्मपुर 1 में जो टीएमसी के अलावा कोई नहीं है, इंडिपेंडेंट था, वो सारे हमारे साथ आ गए। अब आने वाला के दिन हमारे 10,000 तो क्या, हमको 100% लीड देना है। और सारे मेंबर जो ज्वाइनिंग किए वो आगे आ जाए। और मंत्री साहब वंदे मातरम, वंदे मातरम, मामा मानो जिंदाबाद, मामा मानो जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, गुलाम रब्बानी साहब जिंदाबाद, गुलाम रब्बानी साहब जिंदाबाद, मोनीदास जिंदाबाद, मोनीदास जिंदाबाद, अंचल प्रेसिडेंट नूर इस्लाम साहब जिंदाबाद, नूर इस्लाम साहब जिंदाबाद, धर्मपुर अंचल कमेटी जिंदाबाद, धर्मपुर अंचल कमेटी जिंदाबाद, धर्मपुर सारे लीडर जिंदाबाद, धर्मपुर बूथ प्रेसिडेंट जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमारे धर्मपुर के सारे बूथ प्रेसिडेंटों का।